before praising and worshiping God, I just want to share just one verse from the Word of God. स्तुति आराधना में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ पढूं From the Gospel according to John, और यूहन्ना द्वारा रचा सुसमाचार chapter 4, verse 24. 4 अध्याय उसका 24वां पद. It says, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और जो कोई उसकी आराधना करना चाहता है वो आत्मा और सच्चाई में करे. It doesn't say those who worship Him can worship Him. परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता कि जो कोई उनकी आराधना करना चाहता है वो कर सकते हैं, But it says must worship Him, लेकिन ऐसे कहता है कि करना पड़ेगा उन्हें, which means that only if we worship the Lord in spirit and in truth, और इसका अर्थ ये है कि जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं, that is when we truly touch the heart of God. इसका मतलब ये है कि तभी हम परमेश्वर की हृदय को छू सकते हैं. Amen. आमीन. So I would like to encourage each one of us this morning, तो मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगी आज की सुबह, when we worship God, let us all pour out our hearts, our mind, our souls, our everything. We will worship Him and only Him alone. कि जब हम उनकी आराधना करते हैं तो अपने पूरे मन से अपने सोच विचारों को पूरा उनकी ओर करके हम उनकी आराधना करें. Amen. आमीन. So let us all stand on our feet चलिए हम सभी खड़े हो जाएं and worship the Lord in spirit and in truth. और परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई में. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है
worship you in spirit and in truth, oh God. We come before you now, Lord, to worship you. Oh God, we humble ourselves before you to worship you, to exalt you, Jesus. We just want to thank you for everything, Lord. We thank you, Lord, for giving us eternal life, Lord. Jesus, you died on the cross, oh God, for us, Lord, to save us, oh God. We just want to say thank you. Shukriya, Shukriya, Prabhu Yeshu. Tera Shukriya. Oh, yes, Lord. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो
शुक्रिया तेरा, ओ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु यीशु, जो कुछ भी तूने किया है मेरे लिए, उसका शुक्रिया। Oh, yes, blessed be your holy name, Jesus. We lift up our hands. We lift up our heart to you, Lord. Oh, you've done that you've done. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. हाथों को उठाकर प्रभु कहता है तेरा शुक्रिया, घुटनों को टिकाकर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया, हाथों को उठाकर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया, घुटनों को टिकाकर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया। Oh, yes, Lord. We sing hallelujah to the Lamb upon the throne who takes away our sins. Lord, we thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for all that you have done for us, oh God. We thank you for your presence here with us, oh Lord, today. Jesus, we worship you and we exalt you, Lord. We lift you up higher and higher, oh God. For you alone deserve all the glory, all the honor. Everything that we are, oh Lord, we owe it all to you, Jesus, 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 King of kings and Lord of lords. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Good afternoon, church. How are you all this afternoon? आज के दोपहर आप सभी कैसे हैं? All the sleepy heads, lift your hands. आप में से जितने लोग को नींद आ रहा है हाथ उठाए. Please wait for the Hindi translation before you react to what I say.
मेरे कुछ बोलने से पहले आप अपना कुछ रिएक्शन देने से पहले आप इंतज़ार कीजिएगा कि हिंदी में पहले अनुवाद किया जाए. I'll be speaking in English and sister will be translating here. भाई यहाँ जो है वो अंग्रेजी में बोलेंगे और मैं हिंदी में अनुवाद करूँगी. And please wait for her. मेरे लिए इंतज़ार कीजिएगा. Okay? ठीक है. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ इस समय यहाँ पर. Not just me, as a whole community of Nichols Roy Bible College, Soringham. और सोरिंघम जो बाइबल कॉलेज है उन सभी की ओर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ. So we give you a greeting and we are very thankful that the Grace Covenant Church has given us this opportunity to come here and do our practical ministry. और हम आप सभी का अभिवादन करते हैं और हमें जो यहाँ पर मौका दिया गया कि यहाँ पर आके हम अपना जो कार्य है अपना जो सेवकाई है उसको यहाँ पर पूरा कर सके. So I'll give a brief introduction about myself. सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा आपको. My name is Roser. मेरा नाम रोजर है. Roser, R-O-Z-A-R. मेरा नाम रोजर है. Okay. And I'm married to a beautiful woman. और मेरा विवाह एक खूबसूरत स्त्री से हुआ है. Her name is Market. She's basically from Meghalaya. और उनका नाम मार्केट है और वो यहाँ मेघालय से ही है. And I'm doing my masters in divinity in Soringham. और मैं मास्टर्स इन डिविनिटी कर रहा हूँ सोरिंघम के बाइबल कॉलेज से. Basically, I come from Bangalore. और दरअसल मैं बेंगलोर से हूँ. For the last 10 years, I've been in ministry now. और पिछले 10 सालों से मैं सेवकाई कर रहा हूँ. And God has been using and God has left me here. और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है और मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं. And I believe that God will do greater things in this place as well. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस जगह पे भी बहुत महान कामों को करेगा. That is enough. और ये काफ़ी होगा. Because I don't want to brag about myself. क्योंकि मैं अपने विषय में ज़्यादा बड़ाई नहीं करना चाहता. Because Christ is bigger than me. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मुझसे बड़ा है. Hallelujah. हालेलुया. Say to yourself. आप अपने आप से कहे. Christ is bigger than me. यीशु मसीह मुझसे बड़ा है. Tell to your neighbor. अपने पड़ोसी से कहे. Christ is bigger than you. मसीह आपसे बड़ा है. Say it. ये कहे. Tell them. आप कहे अपने पड़ोसी से. Christ is bigger than you. मसीह जो है आपसे बड़ा है. Hallelujah. हालेलुया. And this afternoon, और आज के इस दोपहर को I want to bring something that is very unique and very much needed for present day context. और मैं जो आज के दिन बांटने जा रहा हूँ वो बहुत ही अनोखा है और आज के दिन बहुत ही जरूरी है. Many a times Christians fail to understand what is uniqueness and what is distinctiveness. और बहुत बार हम ईसाई होने के नाते भी हम भूल जाते हैं कि अलग होना जो है वो क्या है. What is distinctiveness? ये अलग होना, अलग पहचान होना ये क्या है. Why is as Christian we have to portray distinctiveness or uniqueness in the world? और क्यों एक ईसाई होने के नाते हमारा ये अलग स्वभाव होना या फिर एक अनोखा स्वभाव होना क्यों जरूरी है. And Paul in 2 Corinthians chapter 6 और पौलुस जो है दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय में verses 14 to 18 उसका 14 से लेके 18 में कहता है. he brings this awareness to the Corinthian church. और वो इन बातों को जो है कोरिन्थी के कलीसियों के विश्वासियों के बीच में लेकर आता है. He reminds them that what is to be unique. और वो याद दिलाता है सभी को कि अपना एक अलग पहचान होना क्यों जरूरी है. 2 Corinthians chapter 6 और दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय verses 14 to 18. 14 से लेकर 18. I'll request the sister to read in Hindi. मैं इस वचन को पढ़ूंगी. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वास का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध. क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे. इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और मेरे बेटियां होगे. और यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है.
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The word is very clear in this place. परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट है। Paul brings a spiritual and moral distinction between what is good and what is right. पौलुस यहाँ पर एक आत्मिक बात को करता है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताता है कि कौन सा बात जो है अच्छा है और कौन सा नहीं। He also speaks about what is to live holy life. और वो ये भी बताता है कि एक पवित्र जीवन जीना क्या होता है। And if we do this, what are the blessings that we are going to receive from God? और अगर हम इन बातों को करते हैं तो परमेश्वर की ओर से किस तरीके का हम आशीष पाएंगे। If we look at verses 14 and 15 अगर हम 14 और 15वें पद को पढ़ें until the verse 16, और 16वें पद तक लेकर, we see that there is a moral distinction between the believers and the unbelievers. तो यहाँ हम देखेंगे कि जो विश्वासी है और जो अविश्वासी है उनके बीच में एक अंतर किया गया है। Here he says, do not be unequally yoked with unbelievers. और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरे जो अधर्मी लोग हैं उनके साथ मेल झोल न रखो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you all here? क्या आप सभी यहाँ हैं? Are you all here? क्या आप सभी यहाँ हैं? The word of God, Paul starts by saying, do not be unequally yoked with unbelievers. और परमेश्वर का वचन यहाँ पौलुस जो कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। What does this unequally yoked means? और यहाँ पर जो असमान जुए के विषय में कहता है वो क्या है? He says, do not align your morals or your activities along with them. और इसका अर्थ ये है कि अपने जो काम है या फिर कार्य है वो उनके साथ मिलजुल कर ना करो। Do not match your belief, match your values with the unbelievers. और आपके जो विश्वास है उसे जो दूसरे के विश्वास के साथ आप मेलजोल ना करें। Not just yours, do not even accept what they have been telling. और इन बातों को भी न मानिए जो कि वो आपसे कहते हैं। If we know what is yoke means, अगर आपको पता हो कि ये जुआ क्या है, we will see these farmers using them. तो हम देखेंगे कि ये जो किसान है उसे इस्तेमाल करते हैं। I'm not sure how much we have seen about yokes in this place. मैं ये नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने इस जुए को देखा है। But the place where I come from, लेकिन जिस जगह से मैं आता हूँ, still people use oxen for farming. तो अब तक भी जो है कई सारे लोग जो है पशुओं को इस्तेमाल करते हैं ताकि ये किसानी के कामों के लिए। And they put a wooden rod on their neck. और जो जो जानवर है उनके गले पे एक तरीके का लकड़ी का सामान बांध देते हैं। And the ox will start pulling. और जबकि ये जो जानवर है जब वो आगे बढ़ता है, and the farming process begins there. और उसके बाद ये हल जोतना जो है वो शुरू हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। That means 2 oxen are going equally in that place. और तो हम देखते हैं कि ये 2 जानवर जो है वो एक साथ चलते हैं। And when it goes equally, that's when the plowing process begins there. और जब वो दोनों एक साथ चलते हैं तभी ये जो जमीन है उसका हल जोतना शुरू होता है। And that is what Paul is trying to tell to the Corinthians. और यही बात है जो कि कोरिन्थ के लोगों को पौलुस कहता है। Do not be unequally matched with them. कि दूसरे लोगों के साथ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। You have to be different and you have to be distinctive. आपको अलग होना है और आपको उनके सोच विचारों में एक नहीं होना है। You have to show the characteristics of God in your life. और परमेश्वर का जो चरित्र है उसे आपको अपने जीवन में दर्शाना होगा। You have to show forth who God is. आपको दिखाना होगा कि परमेश्वर कौन है। And here he brings 3 things. और यहाँ वो 3 चीजों को लेकर आते हैं। In verse 14, और 14वें पद में हम देखते हैं, he says, for what partnership has righteousness with lawlessness? यह वचन कहता है धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We know that you have been righteous, हम जानते हैं इस बात को कि आप धार्मिक हो चुके हैं, not by your own self, अपने आप से नहीं, not by your own works. अपने ही कामों से नहीं। In 2 Corinthians chapter 5, और दूसरे कुरिन्थी 5 अध्याय में देखेंगे in verse 21, उसका 21वां पद, it says, for our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए।
Hallelujah. हालेलुया। The verse is very clear. परमेश्वर का वचन स्पष्ट Paul है। says to the Corinthians, पौलुस ने कोरिन्थियों को कहा, you have been made righteous, तुम्हें जो है धार्मिक बनाया गया है, not by your own works, तुम्हारे अपने कामों के कारण but by नहीं, someone who did not know what is sin. लेकिन उसके द्वारा जिसने कोई पाप को जाना ही नहीं, And God made him sin और परमेश्वर ने उससे पाप ठहराया so that you and I can be made righteous. ताकि वो और हम एक साथ जो है धार्मिक बन सके। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है, In Jesus, और यीशु मसीह में you and I आप और हम have been made righteous. हमें धार्मिक बनाया गया है। And he says to the Corinthians, और उन्होंने कोरिन्थी के लोगों को कहा, if you have been made righteous, और अगर तुम्हें धार्मिक बनाया गया है, what is your work with the lawlessness? तो आपका अधर्म के साथ जो है क्या मेल जोल What है, is your partnership with the lawlessness? और अधर्म के साथ आपका क्या लेना देना Why है। is your work like the lawless people? लेकिन जो अधर्म लोग हैं उनकी तरह आपका काम क्यों है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I have the habit of keep on saying hallelujah in between the preaching. मेरा ये आदत बन चुका है कि सभा के बीच में जब मैं बोलता भी हूँ उसके बीच में मैं हालेलुया बोलता हूँ, I need a response. और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे कहे Hallelujah. हालेलुया। He is asking a question there. और यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है, What is your partnership? आपका मेल जोल, What is your partnership? आपका मेल जोल कैसा है। Why do you still want to live the lawless life? आप क्यों अधर्मी का जीवन जीना चाहते हैं। When God of heaven and earth, और जबकि परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो धरती पर आता है, and he came down, और जब वो आया he has died for us और वो हमारे लिए मरा so that you and I can be righteous. ताकि आप और हम धर्मी ठहर सके, You and I can be right relationship with God. ताकि हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बन सके। Now our relationship should focus on what is above, और अब हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि ऊपर स्थान पर क्या है, but why the partnership with the world? लेकिन क्यों हम अपना मेल जोल संसारिक चीजों के साथ रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What क्यों, and why? क्या और कैसे, You and I should understand in this place. और इस बात को समझना जरूरी है At हमारे times लिए। we also may be found in this particular aspect of our life, और कई बार हम अपने जीवन में अपने आप को इस स्थिति पे पा सकते हैं, that we know that we have been righteous, हम जानते हैं इस बात को कि हमें धार्मिक बनाया गया है, but yet we do not show forth that righteousness to the world लेकिन इस धार्मिकता को हम इस संसार को नहीं दिखाते, because we want to be one among them. क्योंकि हम इस संसार की तरह ही बनना चाहते Or we हैं, live in this world, और क्योंकि हम इस संसार पे रहते हैं we have to walk according to them. तो हमें उनकी तरह चाल चलन भी रखना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Am I direct with my words? क्या मैं सही हूँ अपने शब्दों के साथ? Do we have these thoughts in us? क्या इन बातों को हम सोचते हैं? Do we come to a conclusion by saying, oh, it's okay to sin once? या फिर हम अपने सोच विचारों में से कहते हैं कि एक बार पाप करना कोई बात नहीं, Or is it okay to lie once? ऐसा कोई बात नहीं अगर हम एक बार झूठ बोल भी लेते हैं, Nobody will know. किसी को पता नहीं चलेगा। Oh, I can go to church on Sunday and then ask for forgiveness, मैं संडे को चर्च जा सकता हूँ और उसके बाद मैं माफी मांग सकता हूँ, but it's okay. और ठीक है। What is our partnership with the world? और हमारा मेलजोल कैसा है संसार के साथ, What is our partnership with lawlessness? और हमारा ये मेलजोल कैसा है अधर्मिकता के Do साथ। we say that, oh, he's also doing or she's also doing, it's okay, I will also do it? और हम कहते हैं कि हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, Is that how we live? और वो जैसा रहते हैं, Is that what distinction God is asking from? और जैसा हम जीते हैं, क्या हमारे जीवन में किसी तरीके का अंतर है। And the second aspect Paul brings here, और दूसरी चीज जो कि पौलुस यहाँ लेकर आता है, light versus darkness. और वो है ज्योति और अंधकार के बीच में। He says in verse 14, or what fellowship has light with darkness? और 14वें पद में ही कहा गया है, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। What is the work of light? और ये ज्योति का काम क्या है। The work of light is to reveal things that are there in the darkness. और ज्योति का काम ये है कि जो भी चीज अंधकार में है उसे जो भी चीज अंधकार में है उसे उजियाले में लेकर आ सके। Just imagine अब बस सोचिए that all the lights are off in this room कि इस पूरे कमरे में अगर सभी ज्योतियों को बंद कर दिया जाए, लाइट को, and things are scattered, और हर एक चीज को यहाँ वहाँ फैला दिया जाए,
and we ask you to walk inside. और हम आपको कहते हैं कि आप चलिए यहाँ, Will you be able to walk? क्या आप चल पाएंगे? Will you have that fear that something I might go and I might accidentally touch or something? क्या आपको ये डर रहेगा कि आप जब कहीं पर चलेंगे तो कहीं आप ठोकर खाएंगे, Something might come in my feet. कुछ मेरे पैरों के तले आ सकता I might है fall down. और मैं गिर सकता हूँ? Why? क्यों? Because the darkness. अंधकार के कारण। That is how the darkness works. और इसी तरीके से अंधकार काम करता है, Things here and there. और चीजें यहाँ वहाँ We फैली don't होती know हैं। what it is. हम जानते नहीं कि वो क्या है, That is why we need the light. और इसी कारण हमें ज्योति की जरूरत है। The same if we have light in the room, और उसी तरीके से अगर कमरे में उजियाला हो, you don't need to just run, you don't need to walk, you can also run. और आप सिर्फ चल ही नहीं सकते लेकिन साथ ही आप दौड़ तक सकते हैं, Because you know what things are where. क्योंकि आप जानते हैं कि कौन सा चीज कहाँ है, You know how to, which place I should go. और आपको पता होगा कि कहाँ आप जा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is the light which God has brought us to. और इसी तरीके का ज्योति में परमेश्वर ने हमें लाया है। The word of God says that you have been taken out from darkness and have been set in the greater light. परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हमें ज्योति से, हमें अंधकार से निकाला गया है ताकि हम ज्योति में ठहर सके। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And what is this light? और ये जो ज्योति है वो क्या है? If we look at 1 Peter chapter 2 अगर हम पहला पत्रस 2 अध्याय देखें from 9 and 10, और उसका 9 और 10 पद, it says like this. परमेश्वर का वचन कहता है, But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into the wonderful light. In other translation it says marvelous light. और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, पहला पत्रस 1 अध्याय 2, 9 and 10. दूसरा अध्याय उसका 9 और 10वां पद कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपाधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जान लो कि तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We have to put ourselves in this place today. हमें आज के दिन इस स्थान पे अपने आप को रखना है That we are not of the darkness anymore. कि अब हम अंधकार के नहीं है, You have been taken out. I have been taken out. कि हमें निकाला गया है, And we have been taken out from the bondage of darkness and have been set us on the wonderful light. और हमें अंधकार में से निकाला गया है और उस ज्योति में प्रकट किया गया है। And we do not have any association with the darkness. और अंधकार के साथ अब हमारा कोई मेलजोल नहीं है। When I say what does this light means? और जब हम कहते हैं कि ये ज्योति क्या है, And Jesus also goes on to say in Matthew chapter 5, और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी ये इन बातों को कहा मत्ती 5वें अध्याय में in 14 and 16, उसके 14 और 15वां पद में, you are the light to this world. कि आप इस संसार के ज्योति हो, Not of this world, but to this world. लेकिन आप इस जगत के ज्योति हो, इस जगत के लिए, जगत का नहीं लेकिन जगत के लिए ज्योति हो। Hallelujah. हालेलुया। You are the light to this world. आप इस संसार के लिए, इस जगत के लिए एक ज्योति है। What does that mean? और इसका अर्थ क्या है? That means not just to give light to people. और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि दूसरे को उजियाला दे, That means you have to reveal things that are in the dark. और इसका अर्थ ये है कि जो चीजें अंधकार में है उसे आपको प्रकट करना है उजियाले में। That is what Jesus was meaning there. और यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कह रहा था That you should be the people who will reveal things. कि आपको ऐसे व्यक्ति बनना है जो कि रहस्य को खोले, Because you know the truth. क्योंकि आपको सच्चाई पता है, You have been set free. आपको छुटकारा दिया गया है, And you know the people who live in darkness. और आप जानते हैं कि कौन लोग हैं जो कि अंधकार में जी रहे हैं, And you have to reveal the truth to them. और आपको इस सच्चाई को उन्हें बताना है। Hallelujah. हालेलुया। If there is something wrong happening in your workplace, अगर कुछ गलत हो रहा है आपके कार्यालय में, or if there is something wrong happening in the place of your education, या फिर जहां आप शिक्षा प्राप्त करते हैं वहां अगर कुछ गलत हो रहा or हो, anything that you are doing in life, या फिर कुछ भी आप अपने जीवन में क्यों ना कर रहे हो, if there is something wrong happening, अगर कुछ गलत हो रहा है, it is you and I who are responsible to be the light and reveal the truth there. तो ये हमारा दायित्व है कि हम इन बातों को जाने और उस सच्चाई को हम लोगों तक प्रकट करें। Hallelujah. हालेलुया। That is what
light means. और यही जो है ज्योति का अर्थ है, That is what being light means. और ये ज्योति होने का अर्थ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding what I'm saying? क्या आप इस बातों को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? You are not a simple person. आप सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं है। Tell to your neighbor, आप अपने पड़ोसी से कहे, you are not an ordinary person. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। Tell to your person, not to me. Don't look at me. मुझे देखकर मत कहिएगा, आप अपने पड़ोसी से कहिएगा, अपने संगी से कहिए। Tell to the person who is sitting beside you. आपके साथ जो बैठे हुए उनसे कहे, If that person is sleeping, अगर वो इंसान को नींद आ रहा हो, push them and wake them up उन्हें जगाइए and say, you are not an ordinary person. और उनसे कहिए कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। Is it too difficult, church? क्या ये बहुत मुश्किल है कलेशिया? Why are you not able to say? क्यों आप इस बात को नहीं कह पा रहे? Is it because you are not the light yet? क्या इस कारण क्योंकि आप खुद ज्योति नहीं है अब तक? Do you still, you feel that guilt? I'm not a light, so I will not tell the other person as well. क्या आपके अंदर ऐसा महसूस होता है आपको कि मैं खुद ज्योति नहीं हूं तो इसलिए मैं दूसरे को भी नहीं बोल सकता? Is that so? क्या ऐसा है? Tell to the other person beside you. अपने पड़ोसी से कहिए, आपके साथ जो बैठे हैं, You are not an ordinary person. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। You are the light to this world. आप इस संसार की ज्योति है। Say again, you are the light to this world. एक बार फिर से कहिए, आप इस संसार के लिए ज्योति है। Hallelujah. हालेलुया। We have to come to this understanding हम इस बात को समझना जरूरी है that we cannot associate with darkness. कि हम अंधकार के साथ हम मेलजोल नहीं रख We सकते, cannot associate in the ways of the darkness. और अंधकार के जो काम है उसमें हम अपना हाथ नहीं रख सकते। We have to be the light to this world. हमें इस धरती के लिए, इस जगत के लिए ज्योति बनना पड़ेगा। I am putting stress on this. मैं इस बात को मैं बहुत गंभीरता से कहता हूँ, We have to. हमें करना होगा। At times we are taught not to say like that. हमें कई बार कहा जाता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना है, Do not impose your message on people. कि दूसरे लोगों तक जो है अपना जो आपका विषय है वो दूसरे लोगों के ऊपर नहीं थोपना। But this is not my message. लेकिन ये मेरा संदेश नहीं, This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। And if word of God says, और अगर परमेश्वर का वचन कहता है everybody has to follow it. तो हर किसी को इसे मानना पड़ेगा। If you are called by Christ, अगर आपको ईसाई मसीह ने बुलाया है, if you are the sons and daughters of God, अगर आप परमेश्वर के पुत्र और बेटियां हैं, if you believe in the name of Jesus, और अगर आप यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करते हैं, if you have been saved by the blood of Jesus, और अगर आपको यीशु मसीह के लहू द्वारा छुटकारा दिया गया है, then you are the light. तो आप जो है ज्योति है। You and I are the light. हम सभी यहाँ पर परमेश्वर की ज्योति है। Hallelujah. हालेलुया। And we are to take the world, this light to the world. और हमारा दायित्व है कि इस ज्योति को हम संसार तक लेकर जाएं। Hallelujah. हालेलुया। We cannot be the darkness to the world. हम इस धरती के लिए, इस जगत के लिए अंधकार नहीं बन सकते। Those who have tasted the light cannot be the darkness to the world. और जिन लोगों ने उजियालों को चखा है वो संसार के लिए अंधकार का कारण नहीं बन सकते। And do not be light in the church and be darkness in the world. और ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इस कलीसिया में जब आते तो यहाँ पर ही हम सिर्फ ज्योति बनते हैं और बाहर जाकर हम अंधकार का काम करते हैं। Whenever we associate with the church members, oh, we are the light. और जब भी हम कलीसिया के लोगों से मिलते हैं तो हम तो उजियाला का काम करते हैं। But the moment we go out, लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं meet our friends, और दोस्तों से मिलते हैं, meet our people whom we associate every day, और उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हम दैनिक रूप में काम करते हैं, how do we talk? तो उनके साथ कैसा बर्ताव करते What do हैं, we do? कैसा क्या काम करते What हैं, are our thoughts? हमारे सोच विचार कैसे होते हैं, Are they portraying this light? क्या इस जगत इस ज्योति को दर्शाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The third thing, और तीसरी बात, it's not the third point, it's still the first point, okay? और अब तक मैं जो है पहली बात को मैं बोल रहा हूँ, I'm just breaking down the first point for you. और जो पहला विषय है उसी को मैं तोड़कर बता रहा हूँ। In verse 15, और 15वें पद में it says, what accord has Christ with Belial, or what portion does the believer share with an unbeliever? और बेलाल के साथ जो है परमेश्वर का क्या मेल जोल है, Or what
portion does a believer share with unbeliever? या फिर एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ किस तरीके का मेल जोल होगा? There is no match to the power of Christ. और यीशु मसीह के कामों के साथ या फिर उनके सामर्थ के साथ किसी चीज का कोई सामर्थ There is no match for the work that Christ has done for us. ऐसा कोई और मेल जोल नहीं है। परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए किया है उसके साथ हम किसी चीज का तुलना नहीं कर सकते। Hallelujah. Hallelujah. The power of Christ does not have match to any other gods in this world. और यीशु मसीह के कार्यों का सामर्थ जो है उसे हम किसी भी चीज के साथ तुलना नहीं कर सकते। Belial was a god who, in the Jewish text they call him Satan as well. और बिलियाली जो है वो यानी कि पुराने समय में यानी कि जैसे यहूदी धर्म में उसे शैतान भी कहा जाता था। So what does Christ has to do with Satan? तो यीशु मसीह का जो है शैतान के साथ क्या मेल जोल There है? is no competition or there is no comparison to both of them. तो इन दोनों के बीच में जो है किसी तरीके का तुलना है ही नहीं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Where is the distinction of our God in our life? तो हमारे परमेश्वर का हमारे जीवन में जो है इसका अलग होना ये कैसा है? He is saying, he could be meaning there that what is your stand on Christ? और यहाँ पर ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि यीशु मसीह में हम कहाँ ठहरे हैं? What is our stand for our Christ? या फिर यीशु मसीह के लिए हम किस तरीके से खड़ा होते हैं, किस तरीके से उनके लिए खड़े होते हैं? Have we understood the power of Christ in our life? क्या यीशु मसीह के सामर्थ को अपने जीवन में आप समझे हैं? That we sometimes acknowledge the world and the worldly powers as well. क्योंकि हम कई बार संसार के सामर्थ को हम समझते तो है। Acknowledge, not understand. Acknowledge means we declare or say it. तो कई बार हमें संसार के जो काम है या फिर उनकी जो शक्ति है उसको हम सराहते हैं। What is the work of a believer with an unbeliever? एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या काम? I'm not telling anyone not to go and preach the gospel or something like that. मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि जाकर बाहर आप प्रचार करें, Or just because the pastor said don't talk to unbelievers, so don't do such things. और या फिर मैं आप ऐसा कहे कि पास्टर ने कहा है कि मैं अविश्वासी के साथ बात ना करूं तो मैं करूंगा ही नहीं। That is not my intention. मैं ये नहीं कह रहा। My intention for you to understand is और मेरी जो इच्छा है वो ये है कि आप समझे what is your distinction? कि आपका यहाँ पर जो अलग होना है वो कैसा है। Where do we stand when we are unique for Christ? हम कहाँ खड़े होते हैं, हमारा दशा कैसा है जब हम अलग खड़े होते हैं यीशु मसीह के लिए। When someone preaches about uniqueness in Christ, और जब कभी यीशु मसीह में हमारे विषय में अगर हमें प्रचार किया जाता है, uniqueness of Christ, your uniqueness in Christ, uniqueness is विशेषता, yeah. यीशु मसीह में हमारा विशेषताओं के बारे में अगर कोई हमें अगर प्रचार करता है तो We feel good about it. हम अपने विषय में हमें बहुत अच्छा लगता We है are stirred up in your spirit. और हम अपने आत्मिक जीवन में जो है बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगता है। But when it comes to reality, लेकिन जब सच्चाई में आती है when it comes to living the uniqueness, और जब इस विशेषता को जीने की बात आती है we leave that uniqueness in the church and go back home. तो कई बार हम कलीसिया में ही उस विशेषता को छोड़ के हम घर वापस लौट जाते हैं। We do not carry it along with us. हम इस विशेषता को एक साथ अपने साथ लेकर We नहीं do not जाते, carry it into our workplaces, हम इसे अपने कार्यालय अपने दफ्तर में नहीं लेकर जाते, into the schools and colleges where we study. अपने स्कूल या फिर कॉलेज में जहां हम पढ़ते हैं वहां लेकर नहीं जाते। But we have to understand. लेकिन इस बात को हमें समझना जरूरी है। If you say that you are unique, अगर आप कहते हैं कि आप विशेष है, if I say I am unique, अगर मैं इस बात को कहती हूँ कि मैं विशेष हूँ, we have to show the distinction between the world and the Christ. तो ये जो हमारा चरित्र है उसे हमें दिखाना होगा इस संसार में। Hallelujah. And from Hallelujah. there, Paul और- moves on to speak about the holy life. और उसके आगे जो है पौलुस यहाँ पर पवित्र जीवन के विषय में कहता है He speaks about the spiritual temple और वो आत्मिक जो मंदिर है उसके विषय में कहता है in verse 16. और वो 16 पद में है। He says, "What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people." जैसे 16वें पद में कहा गया है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे।
Hallelujah. हालेलुया। We have to understand in the Jewish temple और हमें ये बात को समझना होगा कि यहूदियों के मंदिर में during that time और उस समय में there was nothing apart from the Ark of Covenant. और वहां पर और कुछ रखा नहीं जाता था, सिर्फ वाचा का संदूक रखा There is no जाता other था idols. और कोई वह मूर्ति नहीं थी। If anyone is found doing such a thing और अगर किसी को भी पाया जाता कि वो ऐसा कार्य कर रहा है according to the law of Moses, तो मूसा के नियमों के द्वारा they will be stoned to death. उस व्यक्ति को जो है पथराव करके उसे मार डाला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। There was an incident in the history that happened और बीते हुए समय में इतिहास में एक ऐसा कार्य हुआ था before the time of Jesus. और यीशु मसीह से पहले, There was one ruler. और एक ऐसा शासक था, He mocked Jews और उसने जो है यहूदियों को जो है उसका ठट्टा उड़ाया था by sacrificing a swine or a pig in the temple. और उसने मंदिर के अंदर में जाके उसने एक सूअर का बलि चढ़ाया था And just for that there was a war. और सिर्फ उसके कारण ही जो है एक युद्ध हुआ था। And that is what temple means to them. और उसका अर्थ जो है यानी मंदिर का अर्थ इतना बड़ा था उनके लिए। That means they cannot do anything apart from what is given in the law of Moses. यानी कि मूसा के नियमों में जो दिया गया था उसको छोड़ वो और कुछ नहीं कर सकते And थे। Paul is addressing the same thing here. और पौलुस उससे उसी बात को दोबारा कह रहा है। Like, what is the agreement of the temple of God with the idols? और यहाँ पर परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि मूर्तियों का परमेश्वर के साथ के मंदिर के साथ क्या संबंध? It is a place of worship. ये जो है आराधना करने का एक स्थान है Worshipping God is what happens in that place. और परमेश्वर की आराधना ही होती है उस स्थान पर। And he brings more clarity into the lives of believers in Corinth. और कोरिन्थ के जो जितने विश्वासी थे उनके पास जो है और भी स्पष्ट रूप से वो कहता He है, says, for we are the temple of the living God. और वो यहाँ पर कहता है कि जीवित परमेश्वर का मंदिर तो हम ही है। We are the temple of living God. हम परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के मंदिर है। I want to make you understand what this temple means. और ये मंदिर जो है इसके विषय में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। What comes to your mind when we speak about temple? जब आप मंदिर के विषय में कहते हैं तो आपके मन में क्या आता है? Anybody can answer. आप में से कोई भी इस बात का उत्तर दे सकता है। What comes to your mind when we speak about temple? जब आप मंदिर के विषय में कहते हैं तो आपके मन में क्या सोच आता है? Place of worship. आराधना करने का स्थान, Okay. और मन की शांति। That's an interpretation, but we can go to the literal. What does it mean when we say temple? हाँ, ये एक अनुवाद है, लेकिन अगर हम मंदिर कहे तो मंदिर में जाने के विषय में जब हम सोचते हैं तो क्या आता है मन में? If we walk a little ahead from here, अगर हम यहाँ से थोड़ा ऊपर और जाते हैं there is a temple, right? तो वहाँ एक मंदिर है। So what comes to your mind when we say temple? तो जब हम मंदिर के विषय में कहेंगे तो वो क्या अर्थ होता है हमारे मन में? Or leave it. Let me ask you a Christian question. चलिए, तो मैं आपको जो है एक ईसाई एक प्रश्न पूछता In the हूँ। Bible, when it says temple, what does it mean? बाइबल में जब मंदिर के विषय में कहा गया है तो उसका अर्थ क्या है? Okay, that's Hindi word for temple. I'll just give a simple answer. मैं एक साधारण सा उत्तर दूंगा। Many of us will think a building. हम सबसे पहले एक बिल्डिंग के विषय में सोचेंगे। Whenever we think about temple, जब भी हम टेम्पल के बारे में या मंदिर के बारे में सोचें we speak of or we think of a building. तो सबसे पहले एक बिल्डिंग को हम सोचेंगे। Oh, it could be like this. हम सोचेंगे कि हाँ, ऐसा कुछ होना It could चाहिए be so tall. और उसका ऊंचाई कुछ इस तरह होगा It could be this big. और इतना शायद बड़ा होगा। That is what the temple comes into our mind. और जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में बस इतना ही विचार आता है। And that's the problem with the English translation. और यही जो है अंग्रेजी अनुवाद का जो है एक समस्या है। It just says temple. और यहाँ पर सिर्फ जो है मंदिर कहा गया है। But if we go back to the Greek word, लेकिन अगर हम यूनानी भाषा में देखें, Paul uses a specific word for this. पौलुस जो है एक शब्द इस्तेमाल करता है इसके लिए। That means the inner shrine or the most holy place. और उसका अर्थ ये है कि सबसे पवित्र स्थान। That is what temple means. और
टेम्पल या फिर मंदिर का सही अर्थ यही है। There are two words in Greek for temple. और यूनानी भाषा में जो है दो शब्द है इस मंदिर के लिए, One is for the building, और पहला है बिल्डिंग के लिए, and one is for the holy place or the most holy place. और दूसरा है यानी सबसे पवित्र स्थान। That is what temple means here. और टेम्पल यानी कि मंदिर का अर्थ यही है यहाँ। And he says that we are the temple of the living God. और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हम ही परमेश्वर के पवित्र मंदिर है। I want you to think for few seconds. मैं चाहता हूँ कि कुछ क्षण के लिए आप इस बात को सोचें। You are the most holy place, or I am the most holy place of the living God. आप इस बात को सोचिए, आप या फिर मैं परमेश्वर के सबसे पवित्र स्थान है। You and I आप और मैं are the है most holy place of the living God. जीवित परमेश्वर के सबसे पवित्र स्थान है। If you go back to the Old Testament days, अगर आप पुराने नियम के समय में जाएं, we know the Ark of Covenant, हम जानते हैं वाचा के संदूक के बारे में, and we know how the tent was made. और आप जानते हैं कि उस पूरे तंबू को किस तरीके से बनाया गया था। There is an outer court, सबसे पहले एक बाहरी स्थान था, there is the inner court or the holy place. और उसके बाद अंदर का जो स्थान है वो पवित्र स्थान था। Let me just explain. In the outer court, all the Israelites or anyone and sacrifice can happen in that place. और जो मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो मंदिर है उसका बाहरी जो स्थान था, वहाँ पर पूरे इज़राइल के वंश के जितने भी लोग हैं वो आकर अपना बलि चढ़ा सकते थे। And in the holy place, और उसके बाद जो पवित्र स्थान है, the priest can enter there वहाँ सिर्फ जो याजक है उसे प्रवेश कर सकता था, and they can do their work, whatever is given to them. और जो भी कार्य उन्हें दिया गया था वो उन्हें पूरा करते हैं। And there is a distinction or the curtain that will separate the most holy place and the holy place. और उसके बाद एक पर्दा सा स्थान था, और वो पर्दा जो है एक स्थान को अलग करता था, और वो स्थान जो है वो सबसे पवित्र स्थान था। In the most holy place, और वो पवित्र स्थान जो है, we see the Ark of Covenant is kept, और वहां पर वाचा का संदूक रखा जाता था, and there the presence of God is there. और यानी कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, And only the high priest can enter in that place. और सिर्फ जो महायाजक है वही उस स्थान पे प्रवेश कर सकता If था। a high priest goes with sin inside, और अगर कोई महायाजक उस जगह पर जो है पाप के साथ अगर प्रवेश करता है, God would immediately kill that person. तो उस व्यक्ति को जो है परमेश्वर तुरंत उसी जगह पर वो मार देता है। And according to this verse, और इस वचन के अनुसार, I'm not scaring you, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, I'm just opening the word for you. मैं बस ये वचन को आपके लिए खोल रहा हूँ। According to this word, इस वचन के अनुसार you are the आप- most holy place. आप ही परमेश्वर के सबसे पवित्र स्थान है। And where is our holy life? और हमारा पवित्र जीवन तब तो कहाँ है? When we speak about our own holy life, और जब भी हम कहते हैं इस विषय में यानी कि पवित्र जीवन के बारे में, see it from this verse. इस वचन के अनुसार देखें। I really see people scared, मैं देख सकता हूँ कि लोग यहाँ पर डरे हुए हैं थोड़े, but you need to understand, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा, Christian life ईसाई जीवन is not an easy life. वो कोई आसान जीवन नहीं। I'll come to church on Sundays, मैं संडे को कलीसिया आया करूँगा, and then the whole week I'm absconding. और उसके बाद पूरा समय जो है मैं दूर रहूँगा। That's not how Christian life is. ईसाई जीवन ऐसा नहीं होता, Christian life is a daily walk. और ईसाई जीवन जो है वो हर दिन का कार्य है, Christian life is a daily check और ईसाई जीवन जो है वो हर दिन अपने आप को जांचना होता है to see that do I fit in the word of God or no. कि हर दिन मैं अपना जीवन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहा हूँ या नहीं। And Paul says you carry the presence of God because you are the temple of the most living God. और पौलुस यहाँ कहता है कि आप परमेश्वर के उपस्थिति को लिए जाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। And do my life comes according to this word. और क्या मेरा जीवन जो है इस वचन के अनुसार है या नहीं? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is what we have to analyze today. इस बात को आज के दिन हमें समझना होगा। When we speak about being unique or being distinctive from the world, जब हम अपनी विशेषताओं के विषय में बातें करते हैं या फिर संसार से अलग रहने के विषय में कहते हैं, that means we should live a holy life. और इसका अर्थ यह है कि हमें जो है पवित्र जीवन जीना है।
And that is what the word of God calls us for. और परमेश्वर का वचन हमें इसी कारण के लिए बुलाया है। That if we don't live because God is walking among us, और अगर हम ऐसा जीवन नहीं जीते इस बात को समझते हुए भी कि परमेश्वर हमारे बीच में चल फिर रहा है, because he promised in this verse, he says, I will make my dwelling place among them and walk among them, and I will be their God and they shall be my people. और क्योंकि परमेश्वर का वचन आप ही यहाँ कहता है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। Hallelujah. हालेलुया। You are the people of God. आप ही परमेश्वर के लोग हैं। You are called by his name. और उनके नाम के द्वारा आपको बुलाया गया है। And he dwells in you और वो आपके अंदर रहता है। in the form of Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा रहता है। And what is my life? तो मेरा जीवन कैसा है? Am I the temple of God? क्या मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? Can I boldly say it today क्या मैं साहस के साथ इस बात का मैं घोषणा कर सकता हूँ that I am the temple of the Most High God? कि मैं परमेश्वर का जो अति पवित्र स्थान या फिर मंदिर हूँ? Can God dwell in me? क्या परमेश्वर मुझ में रह सकता है? Is my life वो मेरा pleasing जीवन to है? him? क्या मेरा जीवन उसके लिए उसे प्रसन्न करता है? I'm not saying this. मैं ये नहीं कह रहा, I'll keep on repeating this. मैं एक बार फिर इस बात को दोहराऊंगा। The word of God says, ये परमेश्वर का वचन कहता है। don't look at me. मुझे ऐसे मत देखिए। You might throw stones at me after this. शायद आप इसके बाद मेरे ऊपर पथराव कर सकते हैं। I'm okay with that. मुझे इस बात पे कोई बात नहीं इससे। But the word of God is asking us. लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे पूछता है। For we are the temple of the most living God, or the temple of the living God. क्योंकि हम ही परमेश्वर के अति पवित्र स्थान है। We cannot live a life however pleases to us. और हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते जैसा कि हमें अपने आप को प्रसन्न करता Every है। day we have to check ourselves with the word of God. हर दिन अपने आप को हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचना पड़ेगा। If we look at James chapter 1 verse 22 onwards, अगर आप याकूब का वचन को देखें, याकूब 1 अध्याय उसका 22वां पद, 22 to 25. और 22 से लेके 25, It says like this, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. For if anyone is a hearer of the word of God and not a doer, he is like a man who looks intently at the natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and preserves, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. He'll be blessed in his doing. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। If we have to check our life, अगर हमें अपने जीवन को जांचना है, the word of God has to be prominent in us. तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जो है The word स्थायी रूप में the बैठना word of पड़ेगा। God should keep on convicting us. और परमेश्वर का वचन निरंतर रूप में हमें The जांचता word of रहना God चाहिए। should be the priority in our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सर्वप्रथम होना चाहिए। Because until and unless we understand the word of God and start acting upon it, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर का वचन को समझते नहीं और उसको कार्य पे नहीं लेकर our आते, life will not transform. तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। Transformation is not a word in our mind. पर ये परिवर्तन जो है वो सिर्फ एक वचन नहीं जो हमारे मन में है, It's an action. वो दरअसल एक कार्य है। And from where does this action comes from? और ये कार्य कहाँ से आता है? From the word of God. वो परमेश्वर के वचन से आता है। For example, उदाहरण के रूप में, if we say that, oh, I will start exercising from today onwards, which I usually keep on saying, और जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में अगर मैं रोज अपने आप से कहता हूँ कि आज से जो है मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, but we don't exercise, लेकिन हम नहीं करते, only in the mind we are thinking, सिर्फ अपने मन में इस बात को सोचते हैं, we will not be fit. तो हम जो है फिट नहीं होंगे।
Thinking will not make us holy, और सोचना जो है वो हमें पवित्र नहीं बनाएगा, but acting upon the word of God, लेकिन परमेश्वर के वचन पर काम करना, checking according to the word of God, अपने आप को जांचना परमेश्वर के वचन के will अनुसार, build a holy living in us. तो हमारे जीवन में एक पवित्र जीवन का स्थापना करेगा. And that is how we can start being the temple of the living God. और उसी तरीके से हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर ठहर सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. And in the third point, और तीसरे पॉइंट में he speaks on the spiritual blessings that we can receive in God. वो परमेश्वर की ओर से जो हमें आशीष मिलेंगे या फिर आत्मिक आशीष मिलेंगे उसके विषय में कहता है. This we see in verses 17 and 18 of 2 Corinthians chapter 6. और दूसरे कोरिन्थी 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद में कहता है. It says, therefore go out from their midst and be separated from them, says the Lord, and touch no unclean things, then I will welcome you. And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे. यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है. Hallelujah. हालेलुया. This is the blessing that God has given us. और ये एक आशीष है जो परमेश्वर ने हमें दिया है. He says that once you start living a life that is distinctive, और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार अगर हम अपनी विशेषताओं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, the blessing will come upon our life. तो आशीष हमारे ऊपर आएंगे. I'm not talking about physical or material blessing in this place. और यहाँ पर मैं जो है सिर्फ ऐसे आशीष के बारे में नहीं कहता जो कि संसारिक है, But it is a spiritual blessing in our life. लेकिन आत्मिक आशीष के बारे में कहता हूँ That we will become the sons and daughters of God. कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे. He says, therefore go out and live. और वो कहता है कि इसी कारण बाहर जाओ और जियो. Go out. बाहर जाओ. When you go out, और जब आप बाहर जाते हैं do the right thing. तो सही काम करो. Separate yourself from the ways of the world. अपने आप को संसार के कामों से अलग किए रखो. And then I will welcome you. और तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा. Then I will accept you. मैं तुम्हें लूंगा, स्वीकार करूंगा. And from there onwards, I will start blessing you. और उसके बाद से मैं तुम्हें आशीष दूंगा. And once you are the sons and daughters of God, और एक बार अगर आप परमेश्वर के पुत्र या उनका बेटा और उनका there बेटी is बनते हैं, nothing that God will hold from Himself to you. और तब जाके ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर आपको नहीं देगा. Everything will be provided unto you. और आपको जो भी जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा. Just like a daughter or a son to an earthly father. और बिल्कुल जैसे संसार में बेटे बेटियां का रिश्ता होता है पिता के साथ. If children ask, the parents cannot say no. जब बच्चे पिता या फिर माता से मांगते हैं तो वो अपने बच्चों को इनकार नहीं कर सकते. And sometimes they say this condition. और इसी तरीके का स्थिति हम देखते हैं That you do this and I will give you this. और एक स्थिति रखते हैं कि तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें ये दूंगा. But I'm not talking about a conditional blessing right now. लेकिन इस समय मैं ऐसे शर्तों वाला जो आशीष के बारे में नहीं कह रहा. It is a blessing that follows your life. और ये एक ऐसा आशीष है जो आपके जीवन के पीछे पीछे आता है. That if you live a holy life, कि अगर आप पवित्र जीवन जीते if you हैं, live a life that is distinctive from the world, अगर आप अपना जीवन इस प्रकार जीते हैं कि संसार से आप अलग होकर रहते हैं, that means the blessing of God will come upon your life. तो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आपके जीवन में आएगा. Hallelujah. हालेलुया. I want to end this sharing this at this point of time और इस समय मैं अपने वचन को यहाँ खत्म करना चाहूंगा by reading one verse और उससे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा from book of Titus. और वो तीतुस के अनुसार है. From book of Titus chapter 2 तीतुस उसका 2 अध्याय from 11 to 14. और उसका 11 से लेके 14 तक. Listen to this very carefully. और इस बात को ध्यान से सुनिएगा. This is very important in our life. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में. We speak a lot about grace, और हम जो बहुत बार अनुग्रह के विषय में कहते हैं, but the grace of God has a different purpose in our life. लेकिन परमेश्वर का वचन का एक बहुत ही अलग सा कार्य योजना है. It says like this in verse 11 to 14 onward, from verse 11 to 14. और 11 से 14 पद तक इस तरीके से कहता है. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope,
the appearing of the Lord, of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. वचन ने ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान प्रभु यीशु परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की महिमा के प्रकट होने के बाद जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसा जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम रहे। Hallelujah. हालेलुया। His grace is not just a saving grace. परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो सिर्फ हमें बचाने के लिए नहीं, His grace is also a transforming grace. लेकिन उनका अनुग्रह जो है वो हमें परिवर्तन लाने के लिए है। A grace that transforms from lawlessness, worldliness to something that becomes his possession. हम ये अनुग्रह इस प्रकार का अनुग्रह है जो हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आता है, अधर्म से धर्म में लेकर आता है, यानी कि जितनी भी चीजें परमेश्वर के विरोध है उनसे परमेश्वर के लिए लेकर आता A है। grace that transforms from people who were separated from God to a people of God. और ये एक ऐसा अनुग्रह है हमारे लिए कि हमें जो हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर की जन नहीं थे, उससे हमें ऐसे लोग बनाया गया है, एक ऐसा वंश बनाया गया जो परमेश्वर के कहलाते हैं। And not just his people, his own possession. और सिर्फ उनके लोग ही नहीं, लेकिन उनका खुद का Possession is उनका खुद का निजी हो, yeah. Possession उनके is their खुद के own. निजी लोग या फिर उनका खुद का Yeah. I hope you understand. मैं आशा करती हूँ आप समझ पाए। You will become one for him. आप उनके लिए एक बन जाएंगे। The most precious thing, I would say, if I have to put it in other words. और सबसे मूल्यवान बनेंगे उनके लिए। Hallelujah. हालेलुया। That is what you and I are. और वही हम सब है आपके लिए। And that is हम what सब the हैं। word of God is calling us for today. और आज के दिन परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही कहता है हमारे बारे में। When you go out from this place, और जब आप इस जगह से निकलते हैं, ponder upon this, इस बात के विषय में सोचिए that you have been called for a higher calling. कि आपको बुलाया गया है एक बहुत ही ऊंचे बुलाहट के साथ। I'm not talking about your ministry calling here. मैं सिर्फ आपके सेवकाई के विषय में नहीं कह रहा यहाँ, I'm talking about the calling to be different in this world. लेकिन मैं उस बुलाहट के विषय में कहता हूँ जो कि आपका अलग होना या फिर आपका विशेष होना। If we look at today's condition, और अगर आज के इस समय में देखें आप, everybody wants to be inclusive. हर कोई जो है किसी के साथ या फिर एकजुट होना चाहता है। When I say inclusive, it's like we should accept everything. और वो चाहते हैं कि हर एक चीज को वो स्वीकार करे। We should accept. हमें स्वीकार करना चाहिए। Oh, if that person is sinning, oh, it's okay, let's accept him. और अगर कोई व्यक्ति अगर पाप कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसे भी हम स्वीकार If करते they हैं। have a thoughts of like we speak about LGBTQ these days. और जैसे कि आजकल हम ये LGBTQ के बारे में कहते हैं, People say that oh, we should accept them. और लोग कहते हैं कि हाँ इन्हें भी हमें स्वीकार करना We should be चाहिए। considerate about them. हम उनके विषय में हमें सोचना चाहिए। But does the word of God says that? लेकिन क्या परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है? Does the word of God ask us to be inclusive in that way? क्या परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम इस बात पे भी हम सम्मति दें That we accept everything even if it is wrong in the sight of God? कि हर बात को हम स्वीकार करें भले ये परमेश्वर के वचन के विरोध है और गलत है, Or can we take a stand against it? या फिर क्या हम उसके विरोध हम खड़े हो सकते हैं? Can we be that people, different people in this world, क्या हम इस संसार में अलग होकर खड़े हो सकते हैं who can become the ambassador or representative of Christ कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के राजदूत बने and say this is wrong? और ये कहे कि ये गलत है? That is what God is calling for. और परमेश्वर इस बात के लिए हमें बुलाता है आज के दिन। Think about this as you go home, इस बात के विषय में जरूर सोचिएगा जब आप घर Examine जाते your हैं, life. अपने जीवन को जांचें so that you will understand what is your call in your life. ताकि आप समझे इस बात को कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है आपके जीवन Shall में। we all stand up? क्यों ना हम सभी खड़े हो जाएं। I'll request the musicians to please come on the stage. मैं चाहूंगा कि सभी जो जितने भी स्तुति आराधना के दल के हैं सभी आ जाएं। Shall we all close our eyes?
चलिए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें Think about the word that has been spoken. और जो वचन आपको कहा गया है उसके विषय में सोचें। What is my life? मेरा जीवन क्या है? What has been my life till now? मेरा जीवन कैसा था अब तक? Just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। If you are compelled to lift your hands, just lift your hands. अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको हाथ उठाना है तो उठाइए। This is a time we surrender our lives to God. ये समय है जबकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। If there is anything that has been holding you to be that unique person or the person who is distinctive from the world, अगर ऐसा कोई चीज है जो आपको अलग होने से आपको रोक रहा है, आपके विशेष होने से आपको रोक रहा है, this is the time we confess before God. तो ये वो समय है कि हम परमेश्वर के आगे आकर हम इस बात का ऐलान करें। Thank you, Jesus. Do not think of who is standing beside you. आप इस बात को ना सोचिए कि आपके साथ कौन खड़ा Or है, what will that other person think about me? और ये मत सोचिए कि दूसरा व्यक्ति आपके विषय में क्या सोचेगा। It's a time between you and God now. लेकिन ये समय है आपके और परमेश्वर के बीच का। If at all you want to give something to God, और अगर ऐसा कुछ भी है जो आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, tell Him, Lord, और I उससे want to be the pleasing aroma to you. और उससे कहिए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं आपके लिए बंदी बनना चाहता हूँ। I want to be the person who is distinctive in this world. और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मैं आपके लिए इस संसार में एक विशेषता का कारण बनना चाहता हूँ। Can we all raise our voices? चलिए हम अपनी आवाजों को Can we all उठाएं। open our mouth and come before the Lord with humility? चलिए हम अपने जुबान को खोलें और परमेश्वर के आगे आए नम्रता के साथ। Can we ask the Holy Spirit to speak to us, convict us? तो चलिए पवित्र आत्मा से मांगे कि वो हमसे बातें करे और हमें जिताए। क्या दे सकता हूँ, तुम्हें क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। Can we lift up our hands and say क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, तुम्हें क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया। Can we lift up our hands and say शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया
church, can we pour out ourselves up before God here? चलिए हम परमेश्वर के आगे आकर अपने आप को सौंपे। Can we pour ourselves out in the presence of God? चलिए हम परमेश्वर के आगे आकर झुके। Let us give up ourselves and say, Lord, I surrender my life unto you, Lord. चलिए बोलते रहे और परमेश्वर के आगे आकर इस बात को कहे कि परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ तेरे आगे। Lord, I want to be different from now onwards, Lord Jesus. परमेश्वर इस समय से लेकर आगे मैं तेरे लिए I don't want to be known by my worldly life, Lord. मैं अपने सांसारिक जीवन के द्वारा अपने आप की पहचान I don't want to be बनाना चाहती known by the lawlessness of this world, God, Lord हूँ। इस Jesus. संसार की अधर्मिकता के द्वारा अपना पहचान नहीं बनाना I चाहती no longer be known by the darkness of this world, God. और इस संसार के अंधकार के द्वारा अपना पहचान बनाना नहीं But I चाहती। want to be known by your name, Lord Jesus. लेकिन मैं तेरे नाम द्वारा पहचानी जानी चाहती हूँ। I want to be known that I am the light to this world. मैं चाहती हूँ कि इस संसार में जाने कि मैं इस संसार के लिए एक ज्योति हूँ। Can we move in the spirit in this place? चलिए हम आत्मा के साथ चलें। Let us move, let us sing in the spirit in this place. चलिए परमेश्वर के आत्मा के साथ ही हम चलें। Oh, the presence of God is flowing in this place. परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर है। Oh, the Holy Spirit is convicting many of us in this place. और पवित्र आत्मा आज के दिन हमें से बहुत लोगों को चिता रही है आज के दिन। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ तुम्हें, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ तुम्हें, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। Can we lift up our hands and say शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। सिंह शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। We give you thanks, O Lord Jesus. एक बार फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं We यीशु। give you glory, Lord. तुझे महिमा देते हैं परमेश्वर। We give you all the honor. तुझे सारा सम्मान देते हैं।
तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम. Say it again. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम. शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा. Thank you once again, Lord, for this wonderful time. एक बार फिर से परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय Thank you के for your लिए, word convicting us. तेरे वचन के लिए जिसने हमें जोड़ा है. Thank you for the word that has come afresh into our lives. इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने हमें तरोताजा कर दिया आज के दिन. Help us, Holy Spirit, हमें सहायता कर पवित्र आत्मा, that we will be able to walk in the word that we have listened to, कि जिस वचन को आज के दिन हमने सुना है उसके अनुसार चल सके, and we will be an ambassador for Christ in this world, और यीशु मसीह के लिए हम राजदूत बन सके इस धरती पर, giving you all the glory and honor और तुझी को सारा आदर सम्मान देते हुए in Jesus' mighty name. यीशु मसीह के महान नाम में. Amen. आमीन. Amen.